वलसाड़ के तिथल रोड नजदीक आए राम निवास नाम का पुराना 17 साल का जर्जरित मकान को तोड़ने की कामगिरी मजदूरों द्वारा चल रही थी। तब छत पर काम कर रहे दो मजदूर छत के साथ नीचे गिरते दबने की वजह से एक की मौत हो गई। मकान गिरने की वजह से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। इस घटना की जानकारी वलसाड़ पालिका विभाग, पुलिस और फायर को होते घटनास्थल पर आ पहुंचे थे। दो दबने की वजह से एक की मौत हो गई तो दूसरे को गंभीर चोट पहुंचते इलाज हेतु कस्तूरबा हॉस्पिटल में ले जाने में आया था। आपको तो लग रही है जाम। तिथल रोड पर एक जर्जरित मकान હતું। એ જર્જરિત મકાનના માલિકને નગરપાલિકા દ્વારા વખત નોટિસો આપીને સૂચના આપવામાં આવેલી હતી કે જર્જરિત મકાન ઉતારી લેવાનું છે અને એવા સમયે જર્જરિત મકાનના માલિકે પોતે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટર પાસે આ જર્જરિત મકાન ઉતારવાની કાર્યવાહી હાથ ધરેલી હતી અને એવા સંજોગોની અંદર આ દિવાલ ધસી પડવાના કારણે એક મજૂરને ઈજા થવાના કારણે હોસ્પિટલાઇઝ કરવામાં આવેલો છે અને એક મજૂરનું અવસાન થયું છે। ઘણા વર્ષ જૂનું મકાન છે અને આ જે જર્જરિત ભાગ હતો એના કારણે જ એ મકાન માલિક પોતે મકાન ઉતારતો હતો અને એવા સમયે આ દુર્ઘટના બની છે। આ જર્જરિત મકાનની બાજુની જે પ્રોપર્ટી છે વુડલેન્ડ શોરૂમવાળી એ પ્રોપર્ટી મારી છે અને અમે લગભગ 2003થી આ જર્જરિત મકાન વિશે મ્યુનિસિપાલિટી, ડિઝાસ્ટર, ડીએસપી ઓફિસ, મામલતદાર જેટલી બી શાખાઓને આ વસ્તુ લાગે એ બધાને જણાવ્યું, આરએમબીને પણ જણાવ્યું કે ભાઈ તમારું આ મેઇન રોડ પર જે આ જર્જરિત મકાન છે માલિક તો એની કંઈ તકેદારી કરતા નથી તો તમે એના પર ધ્યાન આપીને કંઈક કરો, કેમ કે અહીંયા મકાન ખુલ્લું લોકો 2 નંબરના બધા જ ધંધા રાતે ચાલુ થઈ જાય। લોકો દિવસના ટોયલેટ પાણી બી અહીંયા જ કરવા આવે છે। કેટલીઓ કમ્પ્લેન કરી, ફોટા પાડેલા છે 2003થી અત્યાર સુધી। છેલ્લું 2017 કે 18 સુધી મેં કમ્પ્લેન કરી, પછી મારું વર્ષથી હું બરોડા છું એટલે અત્યારે કમ્પ્લેન નહીં દે, પણ આ 2 દિવસથી મને ખબર પડી કે કામ ચાલુ થયું તો એમ જે કરવા આવેલા છે કામ એ લોકોને બી કીધું કે મકાન બહુ ડેલિકેટ છે અને તમે જેસીબીથી કામ કરો તો સારું, એવું પણ કહેવા ગયેલો હતો કાલે અને આજે આ એક જણનો ભોગ લીધો। હવે આ વિશે કોને આપણે મળવું અને કોને કે શું કહેવું? મકાન તો લગભગ 70-80 વર્ષ જૂનું હશે અને આઈ થિંક મેડિકેરની બાજુમાં આનંદ દેસાઈ કરીને રહી છે, એમનું આ મકાન છે। પ્રવૃત્તિઓ તો 2 નંબરની બધી જ ચાલે, દિવસના ટાઈમે પણ ચાલે જ છે, પણ કોઈને ધ્યાન નહીં આવે। મેઇન રોડ પર છે અને હું કમ્પ્લેન કરવા જાઉં તો કોઈ એના પર ધ્યાન પણ ના આવ્યું। પ્રેસમાં પણ ઘણીવાર આવ્યું, ન્યૂઝપેપરમાં પણ ઘણીવાર આવ્યું, પણ કોઈ એના પર કાળજી રાખી નહીં અને લગભગ જેટલી બી વાર હું કહેવા ગયો એટલી વાર કોઈ એનો આમ સેટિસ્ફાઈડ જવાબ નહીં મળ્યો મને અને આજે આ કામ કરવામાં એક માણસનો ભોગ લીધો। होटल चालू करने आज रोज वलसाड़ जिला कलेक्टर कचेरी में संचालकों के साथ बैठक का आयोजन करने में आया था, जिसमें कई शर्तों के साथ होटल खोलने की छूट देने में आई थी। विशेष रूप में होटल में सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ दूसरी माहिती देने में आई थी। अब तक सिर्फ पार्सल सुविधा उपलब्ध थी, जिसमें पार्सल मंगाने वाले ग्राहकों के नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर की रजिस्टर में एंट्री करने में आती थी। पर अनलॉक 1 में नियम अनुसार होटल में ग्राहकों को खाने की छूट देने में आई है, जिस अंतर्गत वलसाड़ पालिका चीफ ऑफिसर JU वसावा ने मार्गदर्शन दिया था। इस बैठक में वलसाड़ की वेज और नॉनवेज होटल के संचालक उपस्थित रहे थे। नॉर्मल जे इकोनॉमिक एक्टिविटी है એ પણ ચાલુ કરવાની છે અને સાથે સાથે કોવિડનું ટ્રાન્સમિશન આપણે કેવી રીતે કંટ્રોલ રિસ્ટ્રિક્ટ કરી શકીએ
એ તરફ એટલે આ બંને બાજુની આપણું એક રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. આપણે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી પણ સરકારશ્રી દ્વારા હવે ચાલુ કરવામાં આવેલી છે અમુક ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન સાથે, અને પેરેલલી આપણે બધાની એ જવાબદારી થાય છે કે ભાઈ આ કોવિડ ટ્રાન્સમિશનને આપણે કેવી રીતે રિસ્ટ્રિક્ટ કરી શકીએ. તો એના માટે આખી આ ગાઈડલાઈનો બનાવવામાં આવેલી છે, અને ગાઈડલાઈનોનો આપણે આમ તો વિગતવાર ચર્ચા થઈ ગઈ છે, પરંતુ એ ગાઈડલાઈનની આપણે બધાને કોપી પણ આપેલી છે, ઓનલાઈન પણ અવેલેબલ છે. એની વિગતવાર તમે સ્ટડી કરીને આનો મુખ્ય હેતુ એ જ છે કે ટ્રાન્સમિશનને આપણે કેવી રીતે ચેનને બ્રેક કરી શકીએ. તો એના માટે જે કંઈ પણ તમે ઇનોવેટિવ સ્ટેપ પણ લઈ શકો. તમે માનો કે બધા એજ્યુકેટેડ માણસો છે, ભણેલા માણસો, તમે તમારી રીતે પણ અમુક ઇનોવેટિવ સ્ટેપ લઈને આપણે એક સારું પ્રેસિડન્ટ પણ ઊભું કરી શકીએ. એવું પણ કરી શકીએ કે ભાઈ વલસાડ શહેરનો કોઈ હોટલ અથવા રેસ્ટોરન્ટના માલિક કોઈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ માટે અથવા તો કોરોનાના ટ્રાન્સમિશનને બ્રેક કરવા માટે કોઈ સારી એવી સિસ્ટમ અથવા કોઈ સારી શું કહેવાય એક પ્રેસિડન્ટ ઊભું કરી શકે અને એને બધા લોકો ફોલો કરી શકે, એવું પણ થઈ શકે. આખું પ્લેટફોર્મ આખું ઓપન છે. એટલે એ રીતે આપણે બધાએ પોઝિટિવ થઈને, તંત્ર પણ તમારી સાથે જ છે, અને આપણે બધાએ પોઝિટિવ થઈને આનો જે હેતુ છે એને આપણે 100% આપણે કેવી રીતે એને રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ કરી શકીએ એમાં આપણે ફોકસ કરવાનું છે. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनलॉक 1 में आज से शर्तों के अधीन धार्मिक स्थल, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और मॉल शुरू करने के नियम जारी करने में आए हैं. केंद्र और राज्य सरकार ने इस एकम धार्मिक स्थल को शुरू करने और नियमों का पालन करवाने जिला वहीवटी तंत्र, पालिका, सीओ, मामलतदार और पुलिस विभाग को अधिकृत करने में आया है. वलसाड कलेक्टर कचेरी में इस अंतर्गत वलसाड के होटल संचालकों सीओ जे.यू. वसावा, मामलतदार मनसुख भाई वसावा और सिटी के पीआई एच.जे. भट्ट की उपस्थिति में बैठक का आयोजन करने में आया था. बैठक में शहर विस्तार में होटल रेस्टोरेंट संचालक को सरकार ने कोरोना के लिए सुरक्षा रखने बताया था. मामलतदार वसावा और पीआई भट्ट ने भी नियमों का पालन करवाने को महत्व दिया था. जिला कलेक्टर आर रावल ने शनिवार को आदेश जारी कर सभी नियमों का पालन करवाने संचालकों को सूचना दी थी. 65 साल से बड़े वृद्ध, गर्भवती महिला, 10 साल से छोटे बच्चे को जरूरी चीज़ों के बिना घर में रहने की सूचना दी है, जिसका ध्यान होटल रेस्टोरेंट के मालिक को भी रखना होगा. वापी की होटल के संचालक ने बताया कि सरकार के नियमों का अभ्यास करने के बाद होटल को खोलने में आएगी. हाल ग्राहक को पहले की तरह पार्सल सेवा शुरू रहेगी, तो दूसरी ओर कई होटल में सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के नियम अनुसार होटल शुरू करने में आई. जिला की 250 से ज्यादा होटल आज से खोलने में आई. साथ ही में शॉपिंग मॉल भी खोलने में आए. होटल और रेस्टोरेंट के कर्मी को रिसेप्शन टेबल पर सैनिटाइजर, ग्राहक की विगत का रजिस्ट्रेशन, वेटर और स्टाफ को हैंड ग्लोव्स पहनना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना जैसी बातों का ध्यान रखना होगा. મેનેજમેન્ટ ગામ બલવાડા ત્યાં હોટલ સહયોગ આવેલી છે, ત્યાં અમે પાર્સલની સુવિધા ચાલુ કરેલી છે. અમારી હોટલના માણસોની અભાવના કારણે પાર્સલ ખાલી ચાલુ કરેલું છે. અમારે સેનિટાઈઝર કરીએ છીએ, માસ્ક, ગ્લાઉઝ પહેરીને કસ્ટમરને સુવિધા આપીએ છીએ પાર્સલની. અમે 75 દિવસ પછી આ હોટલ ચાલુ કરેલી છે. અમને આમ કે આ રૂલ્સના અભાવે હજી 1.5 મહિનો અમને લાગી જશે કે આ બધું રૂલ્સ ફોલો કરતે અમે સવારમાં 7થી લઈને રાતે 9 વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખીએ છીએ. 4 આઈટમ આપીએ છીએ અત્યારે, કેમ કે આ ટ્રકવાળા બહુ અહીંયા આવીને બહુ રિક્વેસ્ટ કરે છે કે અમને કંઈ બી કરીને સુવિધા આપો ખાવાની, થોડું જે મળે અમને. તો અમે 4 આઈટમ અને રોટી, રાઈસ ને છાશ ને એવું બધું આપીએ છીએ. બહુ મોટો માર પડે, કેમ કે લાઇટ બિલ બી વધારે આવી ગયેલા છે અને મેન્ટેનન્સ બી વધારે આવી ગયું બધું સાઈડમાં. પગાર બી લોકોને આપીને ઘરે મોકલેલા છે. એટલે એ લોકો એમ કે અંદર અલગ અલગ માણસો બેસાડીને તમે આ કરો એમ કે રૂલ્સ, તો આપણા પાસે માણસો છે જ નહીં, તો રૂલ્સ ફોલો કેવી રીતે કરી શકીએ? અમારા પાસે અમે ઘરના 5 માણસો છીએ. પહેલાં અમારા પાસે 15 માણસો હતા, બધો ઘરે નીકળી ગયો. બોલાવીએ પણ એ લોકોને આવવાની સુવિધા નથી, કંઈ તો આવી શકતા નથી. હવે અમને તો એમ જ કે સરકાર કંઈ સારો કંઈ નિયમો અને સારું પેલું થાય તો થોડી માણસો ભેગા કરીને પછી હોટલનું કંઈ કરીએ, આગળ વધીએ. હાલ તો નુકસાન જ છે, અમારે બહુ મોટું નુકસાન આવી ગયું. અમને ઉભરતા તો હજી તો બહુ ટાઈમ લાગશે, અમો 3-4 મહિના તો લાગી જ જશે એમ. કંઈ હાલ તો છે ને જે ટ્રકો ગ્રાઉન્ડમાં 15, 20, 25 ગાડીઓ પડી રહે છે, એ લોકોને જમવાનું અમે પૂરું પાડીએ છીએ.
ભાઈ નાવા ધોવાની સગવડ આપીએ છીએ, કેમ કે એ રોજના કસ્ટમર હતા, એટલે અમારા પાછી રિક્વેસ્ટ કરે છે કે ભાઈ અમને આટલું તો કરી આપો। અમે પોતે એને કહીએ છીએ કે તમે માસ્ક પહેરો અને ડિસ્ટન્સ રાખો અને એક એક કસ્ટમરને બોલાવીને પાર્સલ આપતા રહીએ છીએ। आज से हमने पार्सल चालू किया है सर, थोड़ा थोड़ा स्टाफ नहीं है, इसकी वजह से भी थोड़ा बड़ा पार्सल चालू किए हैं। वो शर्त वगैरह है, वो सब को देखते हुए अभी कुछ खुल के चालू नहीं किए और स्टाफ भी कम है। आगे आगे जैसे होगा जो व्यवस्था उस हिसाब से भी हम लोग चालू करेंगे। फिलहाल तो ये स्टाफ नहीं है, 2-4 ऐसे पार्सल हम लोग चला रहे हैं। शर्तें बहुत कड़क है, उस हिसाब से अभी चालू नहीं कर सकते पूरा होटल। इसमें मास्क वगैरह लगाना है, एक ग्लव्स लगाना है, 6 फुट की दूरी पे ग्राहक बैठाना है, ये सब का हिसाब है, तो वो सब अभी हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, फॉर्मेट आया था, फॉर्मेट आया था, लेकिन उतना हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग नहीं चालू करेंगे, खाली पार्सल ही चालू करेंगे, ओनली पार्सल। ये चलेगा जो भी, लेकिन हमारा स्टाफ का प्रॉब्लम है, इसके लिए नहीं कर सकते। स्टाफ का भी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से अभी खुल के हम पार्सल ये भी नहीं कर रहे। थोड़ा मोड़ा जो आ रहा है 2-4 ग्राहक के, उस हिसाब से हम लोग, क्योंकि स्टाफ भी अपने पास नहीं है। समथिंग 2.5 महीना जैसा कुछ नहीं करना चाहेगा। अब स्टाफ को तकलीफ तो सबको आने वाली है, पूरी तकलीफ है, इसके लिए वही चालू रहेगा, पार्सल ही चालू रहेगा तब स्टाफ पूरा नहीं होएगा। और ये गैस का भी थोड़ा माहौल कम होगा, उसमें आगे देखेंगे क्या करना है। धंधे में तो बहुत फर्क है, लेकिन ठीक है, चल रहा है, चल रहा है। तो बहुत डाउन ही है अभी। पार्सल में कोई चाहता भी नहीं ना, पार्सल खाना कोई चाहता भी नहीं, बैठ के खाना चाहता है, लेकिन हमारी भी मजबूरी। पूरे देश के साथ गुजरात के वलसाड जिला के वापी में भी लॉकडाउन के 75वें दिन मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोलने में आए हैं। वापी में मंदिरों में सुबह आरती के वक्त भक्तों ने भगवान के दर्शन किए थे। तब हाल कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर मंदिर में विशेष व्यवस्था करने में आई है। इस अंतर्गत वापी के जलाराम मंदिर के पुजारी पीयूष जानी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थल बंद थे, अब सरकार ने खोलने की मंजूरी दी है, तब आज से मंदिर के द्वार खोलने में आए हैं। साथ ही में भक्त दर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रखे, इसलिए सर्कल बनाने में आए हैं। द्वार पर सैनिटाइजर रखने में आया है। दर्शन के दौरान हार, प्रसाद, अगरबत्ती चढ़ाने की मनाही है। सभी भक्तों के लिए दर्शन का वक्त सुबह 8 से 11:30 और दोपहर को 3 से 7 बजे तक रहेगा। आज भगवान के द्वार खुलने का पहला दिन था, तब मंदिर में सभी जरूरी व्यवस्था करने में आई है, पर कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर भक्तों ने पहले दिन दर्शन स्थगित कर सोशल डिस्टेंसिंग रखा हो, ऐसा दिख रहा था। તારીખ 25થી લોકડાઉન થતાં સરકારની જાહેરાત મુજબ આપણે બધા ભારતના દરેક મંદિરો બંધ કરવામાં આવ્યા હતા અને અત્યારથી સરકારની ગાઈડલાઈન મતલબ 8 તારીખથી આ મંદિરો જ્યારે ખોલવામાં આવ્યા છે ત્યારે અમારે સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ અત્યારે જે રાઉન્ડ કરીને જે એ રીતે જે દર્શન કરવા આવે છે એ રીતે દર્શન બધા ભક્તો કરશે અને સેનિટાઈઝરનું પણ અમે ત્યાં ગેટ ઉપર રાખેલું છે। એમાં હાથ ધોઈને આવે અને ભક્તોને કે જણાવ્યું કે એમાં ફૂલ, હાલ, પ્રસાદ, અગરબત્તી જેવું જલારામ બાપાને પણ ભગવાનને પણ ચડાવવામાં નહીં આવે। શરૂઆત એટલે કે હમણાં જેમ જેમ ભક્તોને ખબર પડશે એમ હવે ભક્તો દર્શન કરવા આવશે અને અમારા મંદિરનો સમય છે સવારે દર્શનનો સમય છે 8 થી 11:30 અને બપોરે 3 થી 7નો સમય છે અને એ સમયે ભક્તો દર્શન કરવા આવે એવી નમ્ર વિનંતી। पारडी नगर के विस्तार में सरकार के लॉकडाउन पार्ट 5 में सरकार द्वारा समय मर्यादा अनुसार छूटछाट देने में आई है, जिसमें वलसाड कलेक्टर के सूचन अनुसार आज रोज सोमवार को पालिका के चीफ ऑफिसर प्राची दोषी की टीम ने दुकानों में कोरोना महामारी के नियमों का पालन करवाने सरप्राइज चेकिंग किया था, जिसमें नियमों का भंग करने वाले दुकानदारों के पास ₹200 का जुर्माना लिया था। हाल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड ग्लोव्स पहनकर सहकार देकर कोरोना वायरस को रोक सकते हैं। पारडी शहर को कोरोना लॉकडाउन के वक्त छूटछाट में दुकानों में सरकार के नियम अनुसार मास्क, हैंड ग्लोव्स और सोशल डिस्टेंसिंग रखना और नियमों का भंग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ पालिका के
चीफ ऑफिसर ने रोष दिखाया था। पारडी शहर में पिछले 2-4 दिनों से लोगों की भीड़ देखते पारडी में कोरोना वायरस को न्योता दे रहे दिख रहे हैं। तब सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और चेकिंग रखवाई जा रही है, जिससे नियमों का पालन करना जरूरी बना है और पारडी के व्यापारी दुकान में आए ग्राहकों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील कर रहे हैं। સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના જે નિયમો આવ્યા છે, જે ગાઈડલાઇન્સ આવી છે એ પ્રમાણે કલેક્ટર સાહેબના જે ઓર્ડર પ્રમાણે અમે જે નગરપાલિકા વિસ્તારમાં જે લોકો કે જે દુકાનદારો કે હોટલો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના રૂલ્સનું પાલન નહીં કરે કે પછી કોમન મેન કે માસ્ક વગર ફરતા દેખાય તો એમની પાસે 200 રૂપિયા ફાઇન, જે માસ્ક નહીં પહેર્યો હોય તેમને, અને 500 રૂપિયા ફાઇન જે શોપ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનો નિયમ ફોલો નહીં કરે તે લોકો પાસે. એમ કરીને આપણે જે દંડ જેવી ક્રિયા શિક્ષાત્મક ક્રિયા છે એ કરવાના છીએ. અને નગરપાલિકાના જે સ્ટાફ છે એ ક્યારે પણ એક્સિડેન્ટલ ચેકિંગ કરવા માટે નીકળી જશે. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે અમે નગરપાલિકા વતી ચીફ ઓફિસરથી અને નગરપાલિકાની આખી ટીમ તમે લોકોને બધાને એક અપીલ કરીએ છીએ કે અનલોક થયું છે પણ કોરોના નથી ગયું, તો કોરોનાના જે નિયમ છે એ પોતાના સાચવવા માટે, પોતાના ફેમિલીને સાચવવા માટે ફોલો કરો, જેથી એક સારો અને સ્વસ્થ સમાજની આપણે રચના કરી શકીએ. એમ જોવા જઈએ તો આજે 4 દુકાનો અને 15 લોકોને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. दादरा नगर हवेली में शिक्षण विभाग के सिलवासा टोकरखाड़ा आई उच्चतर माध्यमिक शाला के छात्रों ने हंगामा मचाया था। इसकी वजह यह थी कि 2020 की फाइनल परीक्षा लेने में नहीं आई। जब दादरा नगर हवेली प्रशासन शिक्षण विभाग के बताए अनुसार छात्रों ने पहली परीक्षा में विषय के अनुसार जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उनके 33% पर पास करने का तय करने में आया था, पर कई छात्र पहले और दूसरी परीक्षा में डबल डिजिट तक मार्क्स नहीं ले सके, जिससे इसमें कई छात्र नापास हुए थे। भारत सरकार द्वारा HRD मंत्रालय से प्रकाशित समाचारों को ध्यान में रखकर कक्षा 11 की परीक्षा लिए बिना सभी को पास करने होने की आशा से रास्ते पर उतरे थे। आज टोकरखाड़ा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र कलेक्टर कचेरी पर पहुंचे और डेप्यूटी कलेक्टर से बात की थी और छात्रों को बताने में आया कि कई छात्र ट्यूशन जाते हैं, उनसे बात की होने के आरोप लगाने में आए हैं, पर शिक्षण विभाग द्वारा जो नियम तय करने में आए हैं उनके अनुसार सभी छात्र पास हो ऐसी व्यवस्था करने में आई थी, पर कई छात्र प्रथम और द्वितीय परीक्षा में डबल डिजिट के मार्क्स भी नहीं ले सके। ऐसे छात्र ही नापास हुए हैं। ऐसे छात्रों ने परिवार के साथ शाला में जाकर हंगामा मचाया था। आज दादरा नगर हवेली के SDM डॉक्टर अपूर्व शर्मा ने सभी जांच करने की गारंटी दी थी, जबकि छात्रों ने सभी छात्रों की फिर से परीक्षा लेने की मांग की थी। क्लास में पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम टोकरखाड़ा, हमें पास नहीं किया गया है, आधे लोग को पास किया है, हमें भी प्रमोशन चाहिए। हम ये उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पे। और जो टीचर्स लोग हैं वो मतलब गवर्नमेंट ने मना किया है कि टीचर्स लोग को ट्यूशन नहीं लेना है, वो फिर भी को टीचर्स लोग ट्यूशन ले रहे हो। जो स्टूडेंट उनके ट्यूशन जा रहे हैं उनको पास कर दिया उन्होंने, जो रिलेटिव में लगते हैं उनको पास कर दिया, तो हमें क्यों नहीं किया? उन टीचरों का नाम क्या है जो ट्यूशन लेते हैं? उन टीचर्स को नाम है कार्तिका टीचर, तृप्ति टीचर, और भी होंगे पर हम लोग को नहीं मालूम। कार्तिका टीचर, तृप्ति टीचर है, हम लोग को पता है। अभी ये सुनेंगे तो हम लोग को और भी हम लोग को लगता है कि हम लोग को अभी तो और नहीं पास करेंगे, लेकिन अभी हम लोग को बोलना था, हम लोग ने बोल दिया। और हम लोग को अभी अब तो ये उम्मीद नहीं है कि टीचर लोग हम लोग को पास करेंगे, क्योंकि हम लोग ने टीचर के बारे में ऐसा बोल दिया है। टीचर हमेशा मतलब कोई बोलता नहीं था, सबको पास होना है, पास होने के लिए कोई बोलता नहीं था, लेकिन अभी क्या पता। तो वही हम लोग प्रमोशन के लिए आए थे, पर हम लोग को प्रमोशन तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग अब ऐसा बोला गया है, मतलब इंटरनल के बेस पे एजुकेशन ऑफिस में आए आप, यहाँ पे क्या बताया गया? हम लोग इधर पे बोले मतलब कि आपके स्कूल का ही नहीं है, सबके स्कूल का है, लेकिन हम लोग को गुजराती मीडियम में शायद सब पास है, सब पास है। गुजराती मीडियम रखोली स्कूल और इंग्लिश मीडियम में हम लोग है 11th में, तो हम लोग का ऐसा किया है। अभी हम लोग को भी नहीं पता,
अभी तो नहीं लगता है कि इन लोग पास करेंगे शायद। हम लोग ट्यूशन जाते थे, लेकिन हम लोग दूसरी जगह ट्यूशन जाते थे, हम लोग टीचर्स के पास नहीं जाते थे ट्यूशन। और ट्यूशन की भी बात नहीं है, लेकिन इसमें इंटरनल की भी बात किया गया है। वैसे भी हम लोग का अभी पढ़ाई आधा हुआ नहीं था, पढ़ाई हम लोग का आधा फर्स्ट टर्म में तो हुआ था, लेकिन सेकेंड टर्म में आधा भी नहीं हुआ था स्टडी, फिर आधा तो बाकी है। तो इंटरनल बेस कैसे दे दिया? इंटरनल अभी आधी तो बुक भी नहीं चेक की गई थी, बोर्ड एग्ज़ाम हो गया था, फिर ये कोरोना की वजह से सब बंद हो गया, तो एग्ज़ाम का क्या बोलते हैं, इंटरनल भी कैसे लिए होंगे? तो बोल रहे इंटरनल के बेस पे किए, तो पर अभी क्या पता। इंटरनल तो टीचर लोग अपनी मर्जी से ही डालते हैं वैसे तो, प्रोजेक्ट और ये सब, लेकिन प्रोजेक्ट वे सब कभी मतलब लिया नहीं है। लिया था एक बार फर्स्ट टर्म में, लेकिन सेकेंड टाइम में नहीं लिया। मेरा नाम शुभम मौर्य है, मैं डोवाखड़ा इंग्लिश मीडियम में 11th में पढ़ता हूँ। और हमारा रीज़न ये है कि हमको 11th पास नहीं कर रहे, और हमको 3 महीने पहले से नोटिस आया कि हमको पास कर रहे, तो इसी वजह से हमने कुछ पढ़ा नहीं। रीज़न है हमारा, हम लोग बात किए तो बोलते कि हम लोग आपका री एग्ज़ाम, अगर री एग्ज़ाम लेने का है तो आप सबका लो वरना मत लो, हमको सीधा प्रमोट करो। हम 30-40 लोग आए इधर, उम्मीद लेके आए कि हमको पास करे। अभी ये पास नहीं कर रहे, हमको बोल रहे कि री एग्ज़ाम लेंगे। हम क्या पढ़े, हम तो 3 महीने से बैठे, हमको तो 3 महीने से बोला गया कि हमको पास कर देंगे, हम 3 महीने से पढ़े भी नहीं, हम जो पढ़े तो वही भूल गए। ऐसा नहीं चलता है। 9th स्टैंडर्ड के पेरेंट्स है, तो बच्चे लोग को फेल किया गया है। जिसको नहीं फेल करना था उसको भी फेल कर दिया, और जिसको फेल करना था उसको भी पास कर दिया है। अभी अंदर क्या बात चल रही है वो नहीं मालूम, पर बच्चे लोग को फेल करने के लिए तैयार है, पास करने के लिए तैयार नहीं, और री एग्ज़ाम हो रहा है ऐसा बोले। तो हम लोग बोल रहे हैं पेरेंट्स लोग को कि पूरे का एग्ज़ाम लो, रेमिडियंस में मत डालो हम लोग के बच्चे को, डायरेक्ट सबका एग्ज़ाम लो तो सबका एग्ज़ाम लो, नहीं तो नहीं लो, सबको पास करो। और टीचर लोग मैथ्स फर्स्ट सेकंड ट्रायल में तो टीचर ही नहीं था ये स्कूल में, तो बच्चे लोग पास कैसे होएंगे? अभी बोलते हैं एग्ज़ाम लेगा, तो कैसे एग्ज़ाम लेगा? बच्चे लोग को पढ़ाना भी बंद हो गया था, दिसंबर से तो उन लोग का सब प्रोग्राम चल रहा था, और फिर पिकनिक रखा था जनवरी से। बच्चे लोग पढ़ेंगे कैसे? उन लोग का लास्ट सेमेस्टर का स्टार्ट भी नहीं किया, तो बच्चे लोग क्या पढ़ेंगे और क्या एग्ज़ाम देंगे? सबको पास करने का अनुरोध है कि पास कर दो सबको। कौन सी क्लास में आपका बच्चा? स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम। वलसाड में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भंग हुआ। वलसाड तहसील के छरवाड़ा गांव में काम करते मजदूरों में वलसाड के विधायक भरत पटेल द्वारा मास्क वितरण करने में आया था। इस कार्य के फोटो ट्विटर पर अपलोड किए थे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भंग होता दिखा, जिसको लेकर सोशल मीडिया में एमएलए भरत पटेल विवाद में आए हैं और विधायक को सरकार के नियम लागू नहीं होते, ऐसे कई सवाल लोगों द्वारा उठ रहे हैं। મારે એક વાત કરવી છે કે ફોટા છે ટ્વિટર પર છે, સોશિયલ મીડિયામાં છે, તમારે અહીંની સરકાર આ વલસાડની જે કલેક્ટર સાહેબ છે કે ગુજરાતની સરકારને એક વાત કહેવી છે કે આજે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ છે, લોકડાઉન અનલોક હળવું થઈ ગયું છે, ત્યારે રિસોર્ટમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને રાખ્યા છે, તો તેમને કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને રાખ્યા છે એટલે રિસોર્ટ ખોલ્યું નથી અને તેમાં ધારાસભ્યોને રાખ્યા છે, તેવી પરિસ્થિતિમાં તમે એના કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને જે તે રિસોર્ટના માલિક છે, મેનેજર છે, એના પર ગંભીર ગુનો દાખલ કરીને તમે એના પર કાયદેસર કાર્યવાહી કરી શકો છો। શું ભરતભાઈ અહીંયા ભાજપના ધારાસભ્ય છે અને શું ભરતભાઈને આ કાયદો નથી લાગુ પડતો? આ ધારાસભ્યને આ કાયદો નથી લાગુ પડતો કે લોકોના સ્વસ્થ અને સ્વસ્થ સાથે ચેડા કરવા માટે નીકળી પડ્યા છે તે, અને કોઈ પણ જાતનો સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો કોઈ પણ જાતનો કોઈ એ રાખેલો નથી, અને લોકોમાં પોતાની વાહવાહી કરાવવા ભાજપ કામ કરે છે એવું બતાવવા માટે આ લોકોને બતાવવા માટે નીકળી પડ્યા છે। તો મારે આપ મીડિયાના માધ્યમથી વિનંતી કરું છું કે જો કોંગ્રેસે જો હોટલ રિસોર્ટમાં રાખીને એમએલએને રિસોર્ટમાં રાખીને ગુનો કર્યો છે અને એમના પર કાયદેસર કાર્યવાહી કરી છે, તો મારે આપના માધ્યમથી ફરીથી કહું છું કે આપના માધ્યમથી હું અહીંની જે સરકારી લોકો છે, સરકારી તંત્ર છે, એને હું વિનંતી કરું છું કે જો તેના પર જો કાયદેસર કાર્યવાહી થતી હોય તો આ પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો ગંભીર ગુનો બન્યો છે અને લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કર્યા છે, તો આમના પર બી કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવે। वापी के राता वल्लभ नगर में रहते और वेल्सपन कंपनी में काम करते युवान का शनिवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था,
जिसको लेकर अधिकारियों ने स्थल पर पहुंचकर जांच की थी। रात को राता वल्लभ नगर कंटेनमेंट जोन जारी होते इस विस्तार को सील करने की कामगिरी शुरू करने में आई थी। डीडीओ, टीडीओ सहित अधिकारियों ने स्थल पर पहुंचकर सूचना दी थी। वापी के छिरी और राता को मिलते वल्लभ नगर हद विस्तार में साईधाम अपार्टमेंट में रहते शैलेश शिंदे नाम के युवान का शनिवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको लेकर तंत्र में दौड़धाम मची थी। डीडीओ मकवाणा, वापी टीडीओ, गांव के सरपंच मितेश पटेल, तलाटी अमित पटेल, पुलिसकर्मी, आरोग्य की टीम स्थल पर हाजिर होकर कंटेनमेंट जोन की कामगिरी की थी। राता वल्लभ नगर में कंटेनमेंट में सैनिटाइजर की कामगिरी पंचायत कचेरी आरोग्य टीम के साथ करेंगे। इस तरह राता में अब सील किए विस्तार में लोगों को होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी। चिल्ला में शनिवार को कोरोना के 7 केस मिलने के बाद यह सिलसिला जारी रहा है। वलसाड शहर सहित कपराड़ा तहसील में नाना पोंडा में रविवार को कोरोना के और 2 केस मिलते चिंता का माहौल छा गया था। कोरोना के कुल 59 केस सामने आए हैं। तब तंत्र ने सुरक्षा की कामगिरी शुरू कर दी है। जून के पहले हफ्ते में 24 केस कोरोना पॉजिटिव दर्ज हो चुके हैं। चिल्ला में कोरोना से बचने कलेक्टर आर रावल ने लोगों को नियमों का पालन करने सूचना दी थी। सभी लोगों को मास्क, हैंड ग्लोव्स, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का चुस्ती से पालन करने को बताया था। वलसाड शहर में रविवार को भीड़भाड़ वाले विस्तार में 1 केस और कपराड़ा तहसील के नाना पोंडा में 1 केस मिलते 2 केस दर्ज हुए थे, जिसकी वजह से कुल 59 केस हुए हैं। पारडी सुलभ नगर में आई साई सागरीला सोसाइटी में पानी की मुसीबत होते सोसाइटी के रईसों ने आत्मनिर्भर बन के कुछ ही दिनों में मुश्किलें दूर की है। गर्मी के सीजन आते पानी का स्तर नीचे जाते पानी की मुसीबत होती है। नए बोर बनाने पहले देवों के धार्मिक श्लोक से प्रमुख के हाथों करने में आई थी, जिससे सोसाइटी के रईसों ने नए बोर बनाते 53 फुट में ही पानी लगा था, पर हर रोज़ की मुश्किलों को दूर करने 140 फुट जितना पाइप उतारा था। जब बिल्डिंग में और एक बोर में पानी कम होने से पुराना बोर था उसे रीबोरिंग किया था। पहले 95 फुट था, जिसे बढ़ा के 160 फुट तक पाइप उतारते पानी दिखा था। इस कामगिरी में पानी फुल फोर्स से आते बिल्डिंग के रईसों में खुशी का माहौल छा गया था। इस नए बोर की कामगिरी में सोसाइटी के प्रमुख, उप प्रमुख, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष और जयेश, दीपेश, पृथ्वी, सोसाइटी के सभ्य और रईस उपस्थित रहे थे। सोसाइटी के ई विंग में पानी की मुसीबत होते जानकारी करते रात को ही कामगिरी पूर्ण कराई थी। तब कोरोना जैसी गंभीर परिस्थिति के बीच सोसाइटी के रईसों ने आत्मनिर्भरता से काम किया है। निसर्ग तूफान की असर अब वलसाड जिला के किनारा विस्तार पर हो रही है। जिला के उमरगांव तहसील के नारगोल सहित तड़गांव, सरोंडा गांव के किनारे हाल समुद्र की ज्वारा से तट का कटाव होने की परिस्थिति हुई है। गांव के लोगों द्वारा सालों से सुरक्षा हेतु दीवार बनाने की मांग करने के बावजूद तंत्र द्वारा कामगिरी न करते गांव के लोग खुद कामगिरी कर रहे हैं। नारगोल समुद्र तट पर बढ़ती से भारी कटाव हुआ था, ऐसा माजी सरपंच यतीन भंडारी द्वारा बताने में आया था। साथ ही में बताया कि स्मशान भूमि के कंपाउंड की वॉल के नुकसान के साथ दरिया सालों से आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है, क्योंकि समुद्र में आती बड़ी भरती में अंतिम धाम की जमीन और फॉरेस्ट की जमीन की कटाई होते पेड़ धराशायी हो गए थे। बारिश शुरू होते समुद्र में तूफान बढ़ रहा है। समुद्र में बड़ी भरती आ रही है, जो हर साल की तरह इस साल भी उमरगांव तहसील के नारगोल, तड़गांव, सरोंडा जैसे गाँवों को नुकसान पहुँचा रही है। गाँवों में जहाँ समुद्र भरती की वजह से पानी की कटाई की मुश्किलें थी, वहाँ प्रोटेक्शन वॉल के लिए कई रजूआत के बाद गांव के लोगों ने खुद ही प्रोटेक्शन वॉल बना ली है। तब फिर से एक बार गांव के लोगों ने पत्थर की दीवार बनाकर स्मशान की भूमि का नुकसान होते बचाया है। पर अगर जल्दी सुरक्षा दीवार नहीं बनी तो स्मशान भूमि के साथ आसपास के गांव की जमीन की कटाई होगी और भारी नुकसान होगा।
નારગોલ ગામે હાલે આજ રોજ દરિયાઈ ભરતીના કારણે દરિયાઈ ધોવાણ વ્યાપક પ્રમાણમાં થયું છે. નારગોલમાં ચોર તલાવડી વિસ્તાર, નારગોલ નવા તળાવ સ્મશાનભૂમિ અંતિમધામ વિસ્તાર તેમજ પડોશી સરોંડા તેમજ તળગામમાં ખાસ્સું પ્રમાણમાં દરિયાઈ ધોવાણ થયું છે. હાલે દરિયાઈ ભરતી મોટી આવી રહી છે. વરસાદ નથી તેમ છતાં ભવ્ય પ્રમાણમાં ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં પાણી દરિયા તરફ કિનારા તરફ આવે છે અને વૈજ્ઞાનિક ધોરણે વાત કરીએ તો ગ્લોબલ વોર્મિંગની સીધી અસર આપણા ત્યાં જોવા મળે છે. છેલ્લા 15 વર્ષમાં લગભગ 25 થી 30 ફૂટ જેટલા દરિયો બહાર કિનારા તરફ આવ્યો છે. અસંખ્ય વૃક્ષો ભૂતકાળમાં પણ પડ્યા હતા અને આજે પણ થોડી નુકસાન વન વિભાગના જમીનો પર થયું છે. અમારા આ સ્મશાન ભૂમિ ખાતે આજે વ્યાપક પ્રમાણમાં ધોવાણ થયું છે. સ્મશાન ભૂમિ દરિયા કિનારે આવેલી હોય જેના કારણે જ્યાં પાળા નાખેલા હતા એ ધોવાઈ ગયા છે. આ સ્મશાન ભૂમિના જે પાળા ધોયા છે જેના કારણે સ્મશાન ભૂમિની દરેક અહીં જે વિકાસ કરેલું છે જેમ કે કોમ્પાઉન્ડ ફેન્સિંગ કરેલું છે, બેસવાના બાગડા છે, પેવર બ્લોક છે તેમજ સ્મશાન ભૂમિનું મકાન છે એને નુકસાન થવા નજીક આવી ગયું છે. એને આ બાબતથી અમે ખૂબ ચિંતિત બન્યા છે. હાલે આ ધોવાણથી બચવા માટે જે અહીંયા વિકાસ કર્યો છે એને બચાવવા માટે ગ્રામ પંચાયતના માધ્યમથી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા અહીં પથ્થરો નાખીને એની સુરક્ષા માટે અહીં જોઈ રહ્યા છો તમે આ સાઈડ ઉપર દરિયાની ભરતીના કારણે કેટલું બધું ધોવાણ થયું છે અને અમારી આ સ્મશાન ભૂમિ છે એ અમે આ કોઈ સરકારી પૈસાથી નહીં પરંતુ લોક ભાગીદારીથી અમે આ મકાન ઊભું કર્યું છે અને એ મકાન આજે ખૂબ ખરાબ પરિસ્થિતિ અંદર આવી શકે છે અને એનાથી મકાન સુધી ધોવાણ થઈ શકે છે એ પરિસ્થિતિ આજે ઉપસ્થિત થઈ છે. तिथल बीच पे पुलिसकर्मी सैलानियों को जाने से रोकते हैं, पर वलसाड वासियों ने भी तिथल बीच की मजा लेने नया रास्ता अपनाया है और पुलिस से बचकर साईं बाबा मंदिर के बाजू से समुद्र तट जाते रास्ते पर सैलानियों की भीड़ दिखने को मिली. तिथल दरिए का लोग आनंद ले रहे थे. उस दौरान पेट्रोलिंग करते पुलिस जवान को आते देख सैलानी भाग गए थे.